So let us just start today with our webinar. All right. So good evening, all of you, and a very warm welcome to another very informative session on Shiksha. I'm Bhagyashree, your moderator for this session. And today we have, as we know, the topic is all about life of an AIMS student. And particularly we have someone from AIMS Rishikesh. So I'd like to welcome my panelists. Firstly, Avinash Singh, currently studying at AIMS Rishikesh. Avinash, thank you so much for being part of Shiksha's webinar. Thank you, ma'am. Thank you. And Avinash, I would want you to start, with your brief introduction with all the students. Ma'am, myself Avinash Singh, 20 batch MBBS AIMS Rishikesh. My hobbies is watching movie and listening song, and preparation from Rajasthan Kota. Need preparation from Rajasthan Kota. Okay. And yes, ma'am. So, Avinash, you got into this after cracking NEET, right? Yes, ma'am. So, which year did you appear? एम्स से एग्जाम तो बंद हो चुका है, तो अब नीट के ही थ्रू सारे बच्चे आते हैं। So which year did you appear for NEET? नीट के लिए मैम मैंने कोचिंग ली थी। Okay. एक्चुअली मैं स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट था, तो मुझे कोचिंग लेनी पड़ी थी। Okay. उसके लिए मैम मैं राजस्थान कोटा से पढ़ा था। तो मैम मेरी स्ट्रेटेजी तो मैम ये थी कि जैसे सारे टॉपिक तो मैम सभी स्टूडेंट पढ़ लेते हैं एक बार, लेकिन मैम उसके लिए मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपका जितना ज्यादा रिवीजन होगा, बायो में अगर हम बात करें तो बायो के लिए तो मैम एटलीस्ट कम से कम एनसीईआरटी कम से कम 10 से 12 बार तो आपको आनी चाहिए। इतना आनी चाहिए कि अगर कोई भी लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो आपका माइंड तुरंत क्लिक कर जाए कि हाँ ये लाइन का क्वेश्चन है। Right. And which year did you pass NEET? Which year? Like 2020 batch. Oh, okay. Okay. So Avinash is in like second year and he has passed NEET in 2020. So I think you can share all your queries regarding NEET preparations also with Avinash, can share his experience. How well did he prepare? How he cracked this exam and how he got into AIMS? Because Avinash, I know students prepare very, very hard for MBBS exams, NEET especially. Yes, and, studying in AIMS is definitely one of the dream college, one of the biggest colleges they have for, to get into MBBS, be a doctor. They want to get into AIMS, and different campuses are there all over India. So, Avinash, I would like to start firstly, I like to take a question here from Shani. Shani wants to know AIMS में selection के लिए minimum कितना number चाहिए NEET में? So like what is the criteria, cut-off criteria for NEET? Yes ma'am, yes ma'am. मैम अगर आप एम्स ऋषिकेश में रिसेंटली देखा गया, अगर आप एम्स ऋषिकेश में कॉलेज उठाना चाह रहे हैं अपनी सीट, तो मैम कम से कम जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो तो उसको 670 नंबर यानी 670 नंबर होना चाहिए एटलीस्ट। Okay, so for AIMS it is 670. Shani, I think Avinash has already answered, right? So 670 should be like your minimum marks, right? Yes, ma'am. Okay. Coming to Rajneesh. Okay, Rajneesh knows you well. Okay, he's writing that I know Avinash very well, and also he is preparing, and he wants to know about AIMS Rishikesh. He wants to study in AIMS because it's a big opportunity for him. So if you can share a few things about your campus, how did you get into this and why did you select Rishikesh campus? मैम ऋषिकेश का तो सिलेक्शन इसलिए किया क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट और नेचर बहुत ही प्यारा है, काफी ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है, और मैम ऋषिकेश की रैंकिंग भी अच्छी है क्योंकि सबसे पहले एम्स दिल्ली खुला था, उसके बाद 2012 सन 12 में एम्स ऋषिकेश और इसके साथ 3 कॉलेज और एम्स के पटना, भुवनेश्वर और जोधपुर। तो देखा जाए तो रैंकिंग में एम्स ऋषिकेश भी अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है और नेचर के कंपेयर में। और मैम एम्स कॉलेज लेने का मेरा मेन पर्पज ये था मैम कि यहाँ की जो फैकल्टी है, जो पढ़ाते हैं हमें प्रोफेसर्स, इनसे आप इंटरेक्शन आसानी से कर सकते हैं। अगर आप स्टेट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर से उतनी आसानी से इंटरेक्शन नहीं कर सकते। Right. So, Avinash, also, do you feel that language is a barrier? Sometimes does it creates a barrier that someone who is
coming from a Hindi background will have to face some problems when he's going into AIMS or something like that, because the mode of study becomes English. So does that creates a problem? यस मैम, प्रॉब्लम होती है। मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, मेरे साथ के जो मेरे और बैचमेट हैं वो भी हैं, बट मैम क्या है ना कि प्रिपरेशन करते करते हो जाता है, अब आदत पड़ जाती है धीरे धीरे, तो अब उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब सीखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम पेशेंट को जो उसको जो भी गाइडेंस देंगे या उसको जो भी मेडिसिन ट्रीटमेंट की बात होगी, तो वो सब बुक तो इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी। एब्सोल्युटली राइट। तो धीरे धीरे मैम क्या है ना, वो गाइडेंस यहाँ मिल जाती है और इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ जाता है, तो उससे चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन मेन पहला होता है कि आदमी पहले सेलेक्ट होके कॉलेज में तो आए, फिर तो और जो आगे की वो बाद में हो जाती है, सही हो जाती है सब। Absolutely. So that should not be a barrier. But we do these sessions because we have so many students all over India, and a lot of them do not understand Hindi. So we try, to be bilingual and to cater to both sides. Absolutely. Okay. Gitisha has a question for you, Avinash. Gitisha wants to know, what is the routine to be an AIMS MBBS student during first year exam? मैम, फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन की बात करें तो फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन या कॉलेज, आई थिंक फर्स्ट ईयर एग्जाम, कॉलेज की बात कर रहे हैं मैम कॉलेज में फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में क्या होता है मैम, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन इन्वायरमेंट में अपने आप को एकोमोडेट करने में वगैरह। लेकिन मैम 3 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हमें अच्छे से पढ़ना होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ये बेसिक सब्जेक्ट होता है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं तभी आप आगे के सब्जेक्ट को समझ पाएंगे, वरना आप डॉक्टर और प्रोफेसर से कभी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा आपका। राइट। सो गितिशा, आई थिंक Avinash has answered. Okay, Anshuman is here, Avinash, and is asking how to start preparing for NEET, like from zero, absolutely basic. He hasn't prepared anything, so how should he go about that way? Yes ma'am, अगर आप बेसिक से मैम प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो जैसे एक पीसीबी का स्टूडेंट होता है, वो 12 मेन होती है एनसीईआरटी मैम, फिर उसके बाद आप जब पढ़ते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो थोड़ा जो कोचिंग करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं तो एनसीईआरटी पे फोकस करें। और सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन, आप जितना ज्यादा चीजों को रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैम सिलेबस काफी लेंदी है, तो आप एक बार में तो नहीं हो पाता, उसको जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ही आपका सिलेक्शन के पास आप आते जाएंगे। और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन जितना ज्यादा पिकअप करते हैं, उठाते हैं, उतना भी आपका क्लियर होता है। जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी हो गया, क्वेश्चन जो होता है मैम क्वेश्चन जो होता है मैम, वो एक प्रैक्टिकल की तरह होता है, जो हमें अपना आईना दिखाता है कि हमारे अंदर कमी कहाँ रह गई, और जो गलतियां होती है हमसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, उससे हमें ये पता चलता है कि आगे से हमें ये गलती नहीं करनी है। Absolutely. Okay. Coming to some other question, Dipti is here. How much do we need to score for AIMS Rishikesh? Okay, this comes for your campus. Yes, मैम अगर आप एम्स ऋषिकेश लेना चाहते हैं तो जनरल क्राइटेरिया के 670 मतलब 665 या 670 नंबर होना चाहिए, क्योंकि लास्ट 670 गया है। अगर आप ओबीसी के हैं तो 660 पे हो जाएगा, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 600 या 610 पे होता है, इस यही रेंज चलता है मैम। So Dipti, I think Avinash has answered like what is the score for AIMS Rishikesh. Also, she wants to know about the counseling process. Avinash, if you can share a bit about the counseling. मैम अगर आपने नीट क्रैक किया, आपने पेपर दिया, उसके बाद आपको जब ये पता चल जाता है कि मेरा नंबर इस रेंज में आ गया कि मैं सिलेक्शन के आसपास हूँ, तो मैम को सबसे पहले आपको अपने 10th और 12th के डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है और आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाइए। उसके बाद नीट से रिगार्डिंग कुछ वो होते हैं, जैसे आपका नीट का एडमिट कार्ड कभी बच्चे पेपर देने के बाद फेंक देते हैं, तो कुछ लोग के खो जाते हैं, वो नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो लास्ट में मांगते हैं, तो वो होना चाहिए। और फोटो जो आपने नीट के एग्जामिनेशन में आपने फोटो लगाई है, वो फोटो भी आपके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना लगता है। उसके बाद मैम आप रिजल्ट लेके जाएंगे, वहाँ डॉक्यूमेंट होगा और आपको डीडी बनवानी पड़ेगी, जो फीस वहाँ स्टार्टिंग में लगती है। स्टेट मेडिकल कॉलेज की प्रेजेंट टाइम में 30,000
स्टेट मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग के लिए 30,000 की डीडी लगती है, प्लस 2,000 रुपए 2,000 का वो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है। एम्स की बात करेंगे मैम तो यहाँ का कम है, यहाँ 10,000 रुपए ऑनलाइन कटता है, यहाँ डीडी नहीं बनानी पड़ती। 10,000 रुपए फीस कटता है जो रिफंडेबल होता है, और स्टेट में 30,000 की जो फीस होती है वो रिफंडेबल होती है। एम्स में आप 10,000 रुपए आपके कटेंगे वो रिफंडेबल है, प्लस 1,000 रुपए आपके लगेंगे वो रजिस्ट्रेशन का है, वो नॉन रिफंडेबल है। तो आप इतना करने के बाद फिर आप सेकंड स्टेप होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद होता है चॉइस फिलिंग। फिर मैम आप चॉइस फिलिंग में एक ऑर्डर वे में, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंस होता है, उसमें स्टूडेंट को काफी सावधानी रखनी चाहिए कि हम कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं, कॉलेज की रैंकिंग क्या है। कॉलेज के रैंकिंग के हिसाब से स्टूडेंट को अपनी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। तो मैम चॉइस फिलिंग के बाद फिर वो कुछ दिन बाद वो रिजल्ट आ जाता है, फिर उससे पता चल जाता है कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको डेट दी जाती है, आपके जीमेल पे मैसेज आता है, आपको वहाँ जाके अपने आप को प्रेजेंट करना है और अपना डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाना है। फिर उसके बाद वहाँ फीस जमा करिए, आपका वहाँ एडमिशन हो जाएगा। Okay, all right. Okay, coming to some more questions. Okay, so here this question is coming from Alok. AIIMS Delhi, how to get AIIMS Delhi in 1 year? If you have any idea, Avinash, for that, or if you have also like tried for AIIMS Delhi. मैम मैं तो खुद एम्स ऋषिकेश हूँ, तो एम्स दिल्ली के लिए क्या ही आइडिया दे सकता हूँ, लेकिन मैम ये डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेशन होके पढ़ रहे हो, आप जो टेस्ट दे रहे हैं। जैसे बहुत बच्चे अदर इंस्टीट्यूट का टेस्ट ज्वाइन करते हैं, एलएन हो गया, आकाश हो गया, तो आप टेस्ट जो दे रहे हैं उस टेस्ट में परफॉर्मेंस क्या है, उसके साथ साथ आप जो प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस क्या है। और एम्स दिल्ली के लिए मैम आपकी जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 70 उसके अंडर होनी चाहिए अगर आप एम्स दिल्ली लेना चाहते हैं। ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी 70 के अंदर आ रही है तो 70 या 75 तो आपको मिल जाएगा। All right, okay. Sarvesh wants to know how to increase score in NEET. Okay, that's a good question. How to increase score in NEET? यस मैम, अगर आप मैम नीट में अपना स्कोर, जैसे बच्चे बराबर टेस्ट देते हैं तो उनका नंबर नहीं बढ़ता, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उनको ये चाहिए मैम कि रिवीजन, पढ़ाई तो रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज पढ़ा, एक हफ्ते बंक मार दिया, पढ़ना नहीं है। रेगुलर चाहे आप डेली 6 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलरिटी के साथ पढ़िए। साथ में मैम मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप जो टेस्ट दे के आते हैं, हफ्ते में 1 दिन टेस्ट देते हैं स्टूडेंट, वो जो टेस्ट देते हैं टेस्ट पेपर को कभी भी खराब समझ के फेंकिए मत, उसको रखे रहिए। उसमें आपने जो गलतियां की हैं एवरी वीक आप उसको पेज को एटलीस्ट पलट के देखिए कि मैंने क्या टेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर में क्या गलती की थी टेस्ट देते समय, और जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, उसको एक डायरी पे लिखिए और उस टॉपिक को तुरंत पेपर देने के बाद तुरंत जाइए उसको रिवाइज करिए। इससे क्या होता है, आप एक साथ पूरा बुक तो रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो गलती कर रहे हैं वो टेस्ट पेपर में आपकी गलती आती है, उससे पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करते हैं, और उसको कई बार रिवाइज करने से आपका क्या है ना, स्कोर फिर इंक्रीज होता है धीरे धीरे। So I think that is very, very important. And Rashmi saying thank you so much for this session. So I think, Avinash, the kind of experience that you are sharing here for yourself, that Yes, will really work for all those who are sitting for NEET, So I think this will be something that they should actually note down, whatever Avinash is saying. Please make a note and try to follow those tips and tricks that he has used. He cracked the exam and got into, AIIMS. So this is something purely coming out from a student who has his experience. So all of you who are sitting, next for this upcoming NEET, please make a note of all these things that he is discussing here. Okay. Okay, Atharv, I'm taking your question. How to score big in NEET? NCERT book is sufficient. Okay, I think, Avinash, this is a very common asked question, that only NCERT is enough or not. So what would you say? Ma'am, NCERT इनफ है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ NCERT होते हैं, तो उसके लिए आप अगर दूसरी बुक रेफर करते हैं तो सही है, बट सिलेक्शन के लिए NCERT सफिशिएंट है। लेकिन आपको टॉप करना है तो फिर उसके लिए थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके पढ़ना पड़ेगा। तो आप NCERT मेनली तो आपको उसको पढ़िए ही, लेकिन अगर आपको अगर आगे की आउट ऑफ द वे जाके नॉलेज लेना है तो आपको दूसरी बुक पढ़नी पड़ेगी। और
आप बुक के साथ साथ वगैरह, जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आज के समय में फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बच्चों को बायो तो कैसे भी करके वो याद कर लेते हैं, क्वेश्चन भी हो जाता है मोरलेस। फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिक्कत ये होती है मैम, जैसे क्या होता है, वो पेपर देने गए, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा उनको, भूल गए, या क्वेश्चन उनसे गलती हो गई कैलकुलेशन में। तो इसका बेस्ट सिंपल सा तरीका है, अगर आप, दो चीज होता है, एक बच्चे होते हैं दिमाग लगा के पढ़ते हैं, बिना दिमाग से। अगर आप बिना दिमाग से फिजिक्स करना चाहते हैं, तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए तो एक रफ और पेन लेके बैठिए, और जितनी बार भी जो क्वेश्चन लगाएं उसका सबसे पहले फार्मूला, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला लिख लें, इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा। इससे हमारी हैबिट आ जाती है, हम कभी जल्दी भूलेंगे नहीं, वो हमारे हैबिट में आ जाएगा। क्वेश्चन करते समय हमारा हाथ तुरंत काम कर जाएगा फार्मूला लिखने में। अगर आप दिमाग से लगाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में क्वेश्चन भूल जा रहे, फार्मूला भूल गए, थोड़ा डेरिवेशन आपको आना चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो डेरिवेशन के लिए आपको अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। बस यही है कि ये चूज आपको करना है कि आपको हर बार फार्मूला लिख के करना है, या डेरिवेशन आप याद करके तब फार्मूला से सॉल्व करना चाह रहे हैं, ये आपकी चॉइस है। केमिस्ट्री के लिए मैम, सबसे केमिस्ट्री की बात करते हैं मैम, तो उसमें फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी टफ है। तो फिजिकल के लिए कोई फॉर्मूला तो वगैरह नहीं होता, वो प्रैक्टिस पे बनता है। और इनऑर्गेनिक थोड़ी याद करनी पड़ती है, उसमें एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है। और ऑर्गेनिक लोग रटते हैं, वो रटने वाली चीज नहीं है। मैं स्टूडेंट से बार बार ये कहता हूँ, ऑर्गेनिक एक समझने वाली चीज है। आप बार बार जब तक बिना समझ के नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं उसको कर सकते। इतनी बड़ी बुक है, कम से कम 900 पेज की एनसीईआरटी है, आप कितना रटेंगे? तो आप उसको थोड़ा समझ के पढ़िए कि कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, आखिर में क्यों बन रहा है, न्यूक्लियोफिलिक क्या है, न्यूक्लियो ये कैसे अटैच होता है, कैसे नहीं अटैच होता। तो ये आपको समझना पड़ेगा। बिना याद किए आप सिर्फ थोड़े बहुत नंबर ला सकते हैं। अगर आपको अच्छे से सिलेक्शन लेना है तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा बना बिल्डअप करना पड़ेगा। I think that was some very important points that all of you should remember before sitting for your exam, for especially for physics, chemistry, and maths, like how you're gonna deal with that. Okay, coming to another very important question, which I think you might have faced, Avinash, is distractions. So we have Ranjit who is asking like how to avoid distractions. So what did you all do, to avoid any kind of distractions and just focus on your exams? मैम, मेरा पहला डिस्ट्रैक्शन था मेरा मोबाइल फोन। Absolutely. Right. तो मैम, मैं डाटा नहीं डलवाता था कभी भी। अगर डाटा का काम लगता था तो दोस्तों से थोड़ी देर लेके चला लिया। और दूसरी चीज मैम ये था कि उस समय कोविड था तो ज्यादा बाहर नहीं निकलते थे, तो मेरा प्रिपरेशन सबसे ज्यादा कोविड में हो गया, क्योंकि मैं एक रूम में ही ज्यादा देर बंद रहता था। 18 घंटे 20 घंटे रूम में ही रहता था। जब तक इम्पोर्टेंस नहीं होता था तब तक मैं रूम से बाहर नहीं निकलता था। और मैम, डिस्ट्रैक्शन के लिए ये है कि अगर आप पब्लिकली ज्यादा कांटेक्ट रहेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। आपको कोशिश ये करनी है कि सबसे ज्यादा टाइम पढ़ाई को देना है, और अगर आपको टाइम का यूटिलाइजेशन करना है तो आप सो लीजिए। उससे क्या होता है, माइंड मेकअप बहुत अच्छा होता है। दोस्तों से उतना ही मिलिए जितना आपको काम लगे। आप सिलेक्शन के बाद आराम से मिल लीजिएगा सबसे, उसके बाद तो फिर आप फ्री हैं, कहीं भी जाइए घूमिए, आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा। आप फिर हर चीज अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम ये है कि अगर नीट 17 आने वाले 17 तारीख को है, 17 जुलाई, तो आप प्रिपरेशन को अब थोड़ा बढ़ाइए, टाइमिंग बढ़ाइए। जैसे आप डेली 10 घंटे पढ़ते थे, 12 कर दीजिए, 13 कर दीजिए। आपको मन में ये नहीं रखना है कि काश मैं ये कर लिया होता तो सही हो जाता। जो भी करना है आपको बस इसी टाइम में करना है। और रिवीजन टाइम और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, ये दोनों एक ही साथ शुरू कर दीजिए। आप टाइम डिवाइड कर लीजिए कि मुझे किस टाइम में क्या करना है, ये आपको करना है। ये आपको खुद एक अच्छा सा शेड्यूल बनाना है कि रिवीजन कब करना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, और प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस कब करना है कि मैंने कैसे क्या गलतियां की हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, उनसे सॉर्ट आउट कैसे करना है। और टेस्ट हफ्ते में कम से कम एक बार तो टेस्ट एटलीस्ट आप दीजिए, क्योंकि उससे आपको खुद पता चलता है कि आप कर क्या रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में आपका माइंड मेकअप क्या है और आपकी मेहनत क्या कर रही है इस समय। Absolutely, bilkul. And I think lot of you are asking, like Arun, I think Avinash just answered how to remove anxiety during exams, how to remove that stress, how to remove that distraction. So I think you all can try his tricks that he did.
I'm sure, because I know the COVID time is not that much like you have to stay inside, you are going out, you're meeting friends. So I think the kind of strategies that Avinash used, I think you have to follow that to keep yourself, absolutely concentrated. मैम Okay. Yes. एंजाइटी एक लाजमी है, वो तो आती है हर स्टूडेंट को, क्योंकि जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है और अगर वो सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसको एंजाइटी होती है। सबसे पहली बात, आप जब भी पढ़ें, बहुत लोग हैं रात में ज्यादा देर तक जग के पढ़ते हैं, तो एक बेसिक चीज ये है, अगर आप जग के पढ़ रहे हैं तो कुछ स्वीट्स में वगैरह रखिए, क्योंकि रात में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बॉडी का डाउन होता है, उससे हमें बहुत गलत गलत ख्याल आने लगते हैं, आदमी बहुत डिप्रेस में जाने लगता है। दूसरी चीज ये है मैम कि अगर आप एंजाइटी आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं क्या करेंगे आगे, क्या नहीं होगा, तो अगर आप इतने दिन से फेल हो रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट प्रयास करते रहिए। ऐसा नहीं हमको पढ़ाई छोड़ देनी है, हमको इंड रिजल्ट तक पढ़ाई करते रहनी है, पढ़ाई कंटिन्यूस करते रहिए। सबसे बुरा लाइफ में क्या होगा कि आप एक बार फिर फेल हो जाएंगे, एटलीस्ट कम से कम अपने आप से आंख मिला के ये तो कह सकेंगे कि मैंने अपना 100% दिया। तो एंजाइटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आपके जो इमोशनली सपोर्ट करने वाले हैं, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन या कोई दोस्त है, तो आप उससे एटलीस्ट बात फोन पे करिए, 10 मिनट 15 मिनट डेली बात बीच बीच में करते रहिए। ऐसा भी नहीं कि पब्लिकली एकदम डिस्कनेक्ट हो गए, बाद में फिर आप रूम में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। बस हमें उन लोगों से कांटेक्ट में रखना है जो हमें इमोशनली मोटिवेट करते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, बस हमें उन्हीं को कांटेक्ट में रखना है। किसी ऐसे इंसान को टाइम नहीं देना है जिस टाइम को तुम्हारे टाइम की वैल्यू ना करे, और तुम्हारा टाइम भी बर्बाद हो रहा है और आप टाइम भी खर्च कर रहे हैं, तो हमें उस चीज से बचना है। Right, absolutely. Thank you, Avinash, for that so detailed advices that you are sharing. Okay, so we have another question for MSc OT Technical. If you have any idea, if you want to share something, please. Yes. मैम, एम्स इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर डिप्लोमा वगैरह होता है, एमएससी भी होता है, लेकिन उसके लिए आपको बीएससी ओटी होनी चाहिए, आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एक फॉर्म आता है, फिर उसको आप फिलअप करेंगे, उसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है एमएससी ओटी के लिए, एम्स में है प्रेजेंट टाइम में, तो आपको पेपर देना पड़ेगा। उतना नॉलेज नहीं है पेपर के लिए मैम, बट 3 साल का ये कोर्स होता है, तो आपको 3 साल देना पड़ेगा यहाँ पर, और इसकी फीस आई थिंक 40,000 के आसपास है, 1 साल की फीस। Okay, so some of you were asking about MSc OT, so I think Avinash could help with some of the answers that he knew. Okay. Manisha is also asking over here, and I think we had someone here. Okay, so I think a lot of you would want to know last day strategy, because a lot of them are so confused that what should I prepare, because very few days are left, hardly a week or two. So what should be the last day strategy preparation for NEET? मैम, लास्ट डे की स्ट्रेटेजी मेरी यही थी कि मैंने एटलीस्ट पूरे साल में 4-5 बार सिलेबस तो मैंने अच्छे से पढ़ कर रखा था, लेकिन लास्ट के 1 महीने मैंने मैम अपना स्ट्रेटेजी ये बनाया था कि मुझे सारे टेस्ट पेपर देने हैं, टेस्ट पेपर, और पेपर देने के बाद जस्ट आके उनको आंसर मैं चेक करता था कि क्या गलत है क्या सही, मुझसे गलती हुई तो कहाँ पर हुई, और उसको क्रॉस करके मैं एटलीस्ट टॉपिक को नोट करता था। फिर उसके बाद गलती हुई तो क्यों हुई, मैंने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सिली मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो रूम पे बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन तो बहुत इजी था, और हमें सिली मिस्टेक से बचना रहता है। तो हमें सिली मिस्टेक से यही करना है मैम कि हमें क्वेश्चन को बहुत फोकस होके पढ़ना है। कभी कभी क्या करता है नीट वाले में, बहुत ये क्या करते हैं मैम, करेक्ट इनकरेक्ट पूछ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन देंगे, बच्चे पूरा क्वेश्चन नहीं पूछते, लास्ट में इनकरेक्ट या करेक्ट लिख देगा, और वो आंसर देख के आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनको इजी लगता है, वो आंसर तुरंत टिक कर देते हैं। हमको ये नहीं करना, हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझना है, फिर क्वेश्चन को अप्रोच करना है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। और लास्ट डे के लिए उन्होंने पूछा है, तो मैम वही सेम चीज कि आप बायो को रिवाइज करिए, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सॉल्व करिए। बायो का नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको रिवाइज करते रहिए बार बार। फिजिक्स केमिस्ट्री में बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप उसको नहीं कर सकते, आपका नंबर इंप्रूव ही नहीं होगा। Right. Okay, I think that helps to a lot of you, like also all of you who are asking about, like Atharv has also asked about NEET physics.
So day after tomorrow, that is on 6th of July, we are having a session on the exam day tips for NEET, particularly physics. So please attend that. I have already shared that link. It's a free webinar. Join these webinars, register on Shiksha and be part of these webinars. And for NEET, chemistry and bio, we already had done few sessions. They will be available on our YouTube channel, so you can go back to those videos and have a look. And we will be having one last session for NEET, last minute preparation tips for NEET, which will be happening on 13th of July. So I will also put up those links on our LinkedIn profile, right? So please do be part of these sessions. Okay, so Avinash, let's just come to some more questions. Why did you choose quota for coaching? Was it because of teachers or competition? So this question is coming from John, if you would like to answer that. नहीं मैम, मैं तो ये कहूंगा, आप जो नीट एग्जामिनेशन होता है मैम, वो आपसे नॉलेज मांगता है, ये नहीं पूछता आपने पढ़ा कहाँ से, स्टडी कहाँ से की, उसमें नॉलेज, अब ये डिपेंड करता है, आप घर पे भी पढ़ के नॉलेज ले सकते हैं और कोचिंग में भी ले सकते हैं, प्रेफर आपको करना है। एक्चुअली क्या था मैम, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरा बहुत रूरल एरिया, तो वहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है। और दूसरी चीज ये है कि मैम मेरा फ्रेंड जो था वो कोटा में करता था, तो उसके थ्रू मैं उसके साथ गया था। तो मेरा मेन मोटो ये नहीं था कि मुझे कोटा में पढ़ना है, बस मुझे गाइडेंस दोस्तों से मिली तो मैं कोटा चला गया। और अगर आपको लगता है नहीं आप लखनऊ में रह के पढ़ सकते हैं या वगैरह वगैरह, दिल्ली में रह के पढ़ सकते हैं, तो आप वहां जाके पढ़िए, घर पे रह के पढ़ सकते हो घर पे रह के पढ़िए, बट आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पढ़ना कैसे है, ये गाइडेंस आपको पहले से बनाना पड़ेगा। So I think John, Avinash has answered that why did he go to Kota for coaching. Okay, I'll try to take all your queries, but I want all of you to just share your queries in Q&A itself. I would like to pick that up. Atharv is asking, please, if you can share some strategies for botany particularly. मैम बॉटनी के लिए मैम सबसे मैम मैं ये कहूंगा कि जैसे आपको जो काम में इंटरेस्ट है आप वो करिए, अगर इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो इंटरेस्ट बनाइए। बॉटनी के लिए मैं स्टूडेंट से पर्टिकुलरली यही कहूंगा कि आपको बॉटनी में चीजें याद तो करनी रहती है मैम, जैसे अब किसी का नाम है तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। तो आपको साइंटिफिक नेम हर चीज याद करना रहेगा। और मैक्सिमम ये है कि अगर बॉटनी में प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन और थ्योरी दोनों को बराबर का वेटेज देके पढ़िए, कि मुझे 2 घंटे बॉटनी पढ़नी है, उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं, टीचर्स के नोट्स जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको बार बार पढ़िए, बुक्स को साथ में पढ़िए। ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं, बुक नहीं देख रहे हैं, बुक्स को भी देखना है, नोट्स भी पढ़ना है। और इस समय नीट एग्जामिनेशन में नया रूल ये चला है मैम कि एक क्वेश्चन देके वो आपके 2-4 टॉपिक को चेक करता है, वो क्रॉस करने वाला कि मैच करिए कि कौन सा सही है कैसा नहीं। और दूसरी चीज मैम, बॉटनी में आपको डायग्राम देख के भी क्वेश्चन वो पूछते हैं, डायग्राम देख के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको डायग्राम और उसकी लेबलिंग को ढंग से आपको पढ़नी पड़ेगी कि कैसे क्या है। और बॉटनी के लिए भी सेम वही जो आप जूलॉजी करते हो वही बॉटनी में करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। और मैं बायो के लिए एक खास चीज ये कहना चाहूंगा, 2-3 पेज अगर आप कई बार रिवीजन किए हैं तो आपको बायो में एक चीज पता चल जाएगी, बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए, कि आपका वीक क्या है, कि इस टॉपिक में वीक क्या है, मैं बार बार मिस क्या कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा 3 पेज का मैंने बनाया था, तो उसमें अधिकतर होती है मैम जेनेटिक्स में, जैसे किस ईयर में डिस्कवरी हुई, जैसे जो मेंडल थे उन्होंने किस ईयर से किस ईयर किया, उनका डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता है, किस डेट में डेथ हुई या कहाँ किस सिटी में उनका बर्थ हुआ, ये वगैरह वगैरह पूछते हैं। और वो जो डाटा रिलेटेड इकोलॉजी, जेनेटिक्स और मॉर्फोलॉजी और इवोल्यूशन, ये डाटा रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं मैम, इनको आप एक 3-4 पेज का नोट बनाइए और उनको नोट करिए, और डेली आप 5 मिनट उनको टाइम दीजिए, क्योंकि डाटा रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछता है जो बच्चों को याद नहीं रहता, कंफ्यूजन में गलत करके माइनस मार्किंग देके चले आते हैं। डाटा वाले क्वेश्चन को आपको अलग से एक 4-5 पेज का नोट बनाना और डेली आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा एक बार पढ़ने में किसी को डाटा या डेट याद नहीं होती। Okay. All right. So I think that was quite helpful, and we'll quickly come to some other questions. Okay, I'm trying to take all your questions, but I want that you please put it here in Q&A. Okay.
Dipti has a confusion, Avinash. She wants to know that do we get our score just after submitting the test? Is it like that for NEET? Please repeat the ma'am. Like, how do you get to see the score? Just after submitting the test, or dates later on the scores are announced? For NEET, she wants to know. NEET के लिए मैम इससे मैं कुछ कह नहीं सकता मैम इस पे. Okay. Okay, let's just come to some other question. Okay, Manisha is saying there are some questions of statement correction. So what we should do for those types of questions, because उसके वजह से काफी confusion होता है, negative scoring भी है. So what should we do for statement correction questions? Statement correction के लिए मैम elimination method यूज करना चाहिए. जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें एलिमिनेशन मेथड एक ये होता है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ी, उसमें स्टेटमेंट पूछता है कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो अगर इनकरेक्ट पूछा है तो आपको 3 स्टेटमेंट तो अच्छे से आना चाहिए, एटलीस्ट 3 पता होना चाहिए, क्योंकि चौथा ही उसमें इनकरेक्ट होएगा. तो उसके लिए आपको चारों ऑप्शन अच्छे से होना चाहिए. तो उसमें एलिमिनेशन मेथड कि हाँ, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया कि अच्छा ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हो सकता है. तो आपको जब तक चारों ऑप्शन ठीक से नहीं पता होगा, आप एलिमिनेशन मेथड नहीं कर सकते. राइट. ओके. Okay, if someone's syllabus is still pending, how to complete? This question is coming from Sajjad. मैम डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस कितना पेंडिंग है. अगर थोड़ा बहुत पेंडिंग है तो फिर आपको स्ट्रेटेजी लेवल चेंज करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी. अगर मान लीजिए आपने अच्छे से पढ़ रखा है, फिर आपको लग रहा है नहीं मुझे फिर से रिवाइज करना है, तो आपको मैम वो थोड़ा आसान है. उसमें क्या करना है आपको, उसमें यही करना है मैम आपको कि हर चीज के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. अगर शॉर्ट नोट्स पहले से हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो फिर आप प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करिए और बायो को पढ़ते रहिए. बाकी प्रैक्टिस सेट ही से ही फिर आपका जो होना है होगा. उतनी जल्दी आप सिलेबस, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत बड़ा सिलेबस होता है, वो 1 महीने या 15-20 दिन में नहीं खत्म होता. अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आप पेपर सॉल्व करिए, जो डाउट आपका गलत हो रहा है उसको तुरंत जाके थ्योरी उसकी रिवाइज करिए. अगर आप प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसकी तुरंत जो है थ्योरी रिवाइज करने से ही आपका फायदा होगा. और वो थ्योरी को आपको कई बार मल्टीपल टाइम रिवीजन देना पड़ेगा. 1 या 2 बार पढ़ने से आपका वो क्वेश्चन फिर आगे चल के फिर वो दिक्कत हो सकती है. तो 1 या 2 बार पढ़ने से आपका वो काम नहीं बनना है. Okay, I can see a lot of questions coming in, but I would request if you can share your queries in Q&A. Okay, let's come to some other questions. Sarika is asking about your 2 years of experience till now at AIIMS. How is it? मैम अगर 2 इयर्स के लिए मैम ये मैं कहूँगा, अगर कोई स्टूडेंट 10th क्लास में है तो 11th से अपना बैच ज्वाइन कर सकता है. तो उसमें 11th 12th का अलग अलग पढ़ाते हैं कोचिंग वाले. अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो स्कूल के टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं. तो वो आपको देखना है. और 10th पास करने के बाद अगर आप डिसाइड कर लें कि आपको नीट का प्रिपरेशन करना है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या है मैम, आप कम टाइम में सिलेक्शन का चांस ज्यादा होता है. आप 2 साल में अच्छे से पढ़ के और अच्छे से रिवीजन करके सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं. बट डिपेंड ये करता है कि आप कैसे मतलब पढ़ रहे हैं या किस टीचर से गाइडेंस ले रहे हैं. Agree. I totally agree to that. Okay, so Alok is here who wants to know about your first year MBBS practical experience. How was your first year MBBS practical, if you would like to share that? मैम MBBS प्रैक्टिकल में 3 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होते हैं मैम. तो जो एनाटॉमी का प्रैक्टिकल है वो मैम मैं पहले डरता था उसमें, जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसमें कैडेवर, वो जो डेड बॉडी आती है उनको मैम डायरेक्टली फेस करना, स्टार्टिंग में एंजाइटी होती है, बहुत से बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं. तो फिर धीरे धीरे हैबिट में आता है. और उसमें मैम क्या होता है, जब हम लोग डेड बॉडी को जब डाइसेक्शन करते हैं तो जब ऑर्गन निकालते हैं वगैरह तो ग्लव्स पहन के करते हैं. वो क्या होता है मैम, थोड़ा फैटी जो होता है वो हाथ में लग जाता है. तो जब मेस में खाना खाने आओ तो डेड बॉडी वाली स्मेल आती है, तो बहुत फेस करना बहुत दिक्कत होता है. स्टार्टिंग में बच्चे खाना नहीं खा पाते, तो फिर वो धीरे धीरे हैबिट में आ जाता है, फिर वो फिर अच्छा लगने लगता है. और फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो मैम खुद का
खुद की फिंगर खुद से ही प्रिक करके ब्लड निकालना होता है, फिर उस पर स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप पे देखना रहता है, ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड ग्रुपिंग करना रहता है। सबसे सिंपल बायोकेमिस्ट्री का है, वो टेस्ट ट्यूब लेके केमिकल पहले से रखा रहता है, बस उसको मिक्स करके टाइमिंग देके हीट वगैरह करके उसको बस एग्जामिन करना रहता है, बस उतना ही रहता है उसमें। Okay, so Avinash is not trying to scare you if you are getting into AIIMS and into medical student, but that is something which is practical, and I think you will have to face that. So all of you, please do not get scared. He has just shared what he has faced in his first year, but as he said, since you have opted for being an MBBS doctor and you have taken up this profession and career, you will have to have and face all this. This is like part of your syllabus, right? So that is a very good thing that you have shared, Avinash. I think that's a very practical thing that they should know, that yes, they're going to face this. Okay, how to tackle all three parts of chemistry effectively? Okay, Athar wants to know this. 3 parts of chemistry. How can you tackle? मैम 3 पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो मैम वो मैंने ही बता दिया, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन है, उसको तो याद करना ही करना है, बहुत थोड़ा पार्ट है उसमें थोड़ा समझने वाला। ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो मैम उसमें पूरा समझना है और उसको रिवीजन भी करना है। और जो एनसीईआरटी बुक होती है, लोग केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते नहीं मैम, उसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन जो थ्योरी वाले आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, और जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक होती है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन देता है नीट, एज सच सेम डाटा सेम लाइन क्वेश्चन का वो फ्रेम करके देता है, तो बच्चों को एनसीईआरटी उसकी भी पढ़नी चाहिए। और मैम क्वेश्चन सॉल्व करने की बात रह गई तो ऑर्गेनिक में मैम, फिजिकल में तो थोड़े फॉर्मूले वगैरह लगते हैं तो उसमें तो थोड़ा फिजिक्स से कंपेयर करना पड़ जाता है उसको। ऑर्गेनिक का मैम उसमें फॉर्मूले नहीं लगते, लेकिन आपको उसको अच्छे से समझना, बिना समझे आप नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहें कि 1 महीने में मैं केमिस्ट्री तीनों पढ़ के और कर दूं तो आप नहीं कर सकते, ये मुश्किल है। ये आपका बेस अगर मजबूत है, बेसिक पे मजबूत होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट के लिए। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप कोई भी क्वेश्चन सिंपल अप्रोच करके सॉल्व कर सकते हैं। All right. Okay, there's another repeated question that I see here coming. How can we solve physics numerical within a minute? मैम वो सेम मैंने बताया था, 2 तरीका होता है, या तो आप दिमाग लगाइए या बिना दिमाग लगा के करिए। अगर आप दिमाग लगा के कर रहे हैं तो आपका थोड़ा सा टाइम लॉस होगा। अगर मान लीजिए आप एग्जामिनेशन को हॉल में क्वेश्चन भूल जा रहे हैं तो आपको डेरिवेशन आना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि उसमें दिमाग लग के सॉल्व होता है। तो आप फॉर्मूला खुद से बनाइए, 2-3 मिनट का टाइम जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके लिए कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा होता है कि आप जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर आपने एक पढ़ा, तो आप मैम ने चैप्टर पढ़ा, आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप एक काम ये करिए कि आप जैसे मान लीजिए एक तरीके के 10 क्वेश्चन हैं, तो फॉर्मूला को याद मत करिए, बस क्वेश्चन लगाने से पहले आप फॉर्मूला को लिखते रहिए। जितने बार क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। आपने 10 क्वेश्चन लगाए, 10 बार आपने फॉर्मूला लिखा रफ पे और वो आपको याद हो गया। लिखने का फायदा मैम ये होता है कि एक इमेज माइंड में बन जाती है, रटने से बेटर है लिखना, तो राइटिंग भी अच्छी होती है, प्लस आपका जो लिखने से एक इमेज दिमाग में बनता है, उससे क्या हैबिट में आ जाता है। आप कितना भी भूल जाएंगे लेकिन वो आप एटलीस्ट वहां एग्जामिनेशन हॉल में आपसे लिख लेंगे, तुरंत हैबिट में रहेगा, तो आपसे बहुत विद इन मिनट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। I totally agree to that. Okay, so coming to the next question, how can you face professors and seniors first day at college? So I think Avinash, you need to share your first day experience at college. मैम मैंने कंपेयर किया कि स्टेट मेडिकल कॉलेज और सेंट्रल में जैसे अपना एम्स है, रैगिंग तो बहुत कम है एम्स में, ना के बराबर है, कह नहीं सकते उसको कहते हैं मैम, रैगिंग नहीं कहते उसको, इंटरेक्शन कहते हैं। सीनियर आपसे मिलेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, फिर कॉलेज के बारे में पूछते हैं, थोड़ा मैनर्स बताते हैं कि बच्चे डायरेक्ट स्कूल से आए हैं तो उनको मैनर्स पता होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि ये मैनर्स हमें आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट आते हैं, बच्चे प्रोफेसर से कैसे बात करनी है हमें ये पता नहीं होता, तो उसकी वजह से हमारा जो इमेज होता है प्रोफेसर के सामने वो बहुत गंदा होता बन जाता है। उसके वजह से प्रैक्टिकल में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आपके मैनर अच्छे हैं तो प्रैक्टिकल में प्रोफेसर आपको पास कैसे भी करके कैसे ना कैसे करके कर देगा। अगर आप
से उसकी बॉन्डिंग अच्छी है, आप डेली प्रोफेसर से मिल रहे हैं, आपका मैनर उसके सामने अच्छा है, सीनियर पढ़ाई में हेल्प करता है। कभी कभी होता है हम एक हफ्ते 10 दिन पहले जाते हैं सीनियर से, नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े, फिर ये होता है इम्पोर्टेंट क्या है, तो हम सीनियर से बात करते हैं, सीनियर बताता है, फिर 10 दिन पहले हम लोग 12-12 14-14 घंटा बैठ के पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट देखते हैं, उसके बेस पे पढ़ाई करते हैं। तो सीनियर पढ़ाई में हेल्प करता है, हमें मैनर सिखाता है, और प्रोफेसर मैनर के बेस पे हमें नंबर और हमारी परफॉर्मेंस को देख के नंबर देता है। I think that is how you tackle it the first day. I think that's a good experience. Okay, I'll pick up another question. Others, please do not spam. I'm taking up your question here. How to study boards and NEET parallelly? So, Athar, are you sitting for boards in the next year and you want to know how to prepare boards and NEETs together? So I think Avinash, you can share like how, if a lot of them, are preparing for board exams, like for the next year, of course, and they'll also prepare for NEET. So how they can balance, for both? मैम, नीट का क्या है, मैं बोर्ड और नीट का एग्जामिनेशन दोनों में अंतर है। बोर्ड में आपको 30+30 का रेशियो रहता है, 70+30 का, 70 थ्योरी रहता है, 30 में एमसीक्यू आते हैं, बट नीट में 100% एमसीक्यू आता है। तो और क्वेश्चन का लेवल जो होता है मैम, वो बोर्ड से कहीं ज्यादा ऊपर होता है। नीट का क्वेश्चन जो देते हैं वो आपके मेंटल लेवल, पेशेंस और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तीनों चेक करता है वो। तो बोर्ड के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो नीट के लिए आप नीट का थोड़ा टफ पड़ जाएगा। अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो बोर्ड आपका आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ उतनी दिक्कत नहीं फेस करनी होगी अगर आपका नीट तैयार है। क्योंकि नीट में वो इतना डीप में जाके पढ़ना पड़ता है, चीजों को इतना इतना ज्यादा याद रखना पड़ता है कि बोर्ड के लिए आप बेटर ये होगा कि आप अगर नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप नीट को लेके चलिए। अगर आप नीट अच्छे से कर ले गए हैं, नीट का प्रिपरेशन अच्छी कर लिया आप, तो बोर्ड का ऑटोमेटिक आपका अपने आप वो सॉल्व हो जाएगा। बोर्ड में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मिनिमम 55% मांगता है नीट के लिए। एलिजिबल फॉर नीट एग्जामिनेशन, आप नीट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, मिनिमम 55% है। तो हमको तो सर जस्ट पास हो जाइए आप बोर्ड में। नीट निकालने के बाद कोई आपका बोर्ड का परसेंटेज आपसे नहीं पूछता कि आप बोर्ड में कितना पाए थे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ओके, एम्स में हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स के एडमिशन प्रोसेस। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का मैम मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में नहीं बता सकता। जैसे अदर कोर्स जो हैं टेक्नीशियन के, इन सब का होता है मैम, एंट्रेंस एग्जाम होता है। इनका फॉर्म जो आता है वो एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है। तो जिनको अगर इंटरेस्ट है तो बार बार वेबसाइट को चेक करते रहें। और मैम उसके लिए प्रिपरेशन के बारे में नहीं बता सकता, बिकॉज आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट। थोड़ा बहुत पैरामेडिकल वालों को बता सकता हूँ, क्योंकि वो हॉस्टल के आस ही पास रहते हैं, तो उनसे थोड़ा इंटरेक्शन हो जाता है। तो मैं पैरामेडिकल वालों के बारे में बस बता सकता हूँ। Right. So all of you, if you want to know about the other courses, then you can probably log into official website for AIIMS. I can share that link with all of you over here. So you can just check this official website link for AIIMS, right? So that would help you. Okay. Rishikesh की fees. Okay, if you can share AIIMS Rishikesh fee structure. Yes, मैम मैं 20 बैच से हूँ। 19 बैच से फीस 5500 रुपए थी, 5,500, एंड हमारे 20 बैच से फीस डबल हो गई है, 11,450 रुपए, 11,500 रुपए फीस है। ये 5 साल की फीस है। आप 5.5 साल एमबीबीएस 5.5 का ड्यूरेशन है। एमबीबीएस का जो ईयर डिवाइड किया गया है 1 ईयर प्लस 1.5 ईयर, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर। लास्ट स्टार्टिंग के जो 4.5 ईयर होते हैं वो होते हैं स्टडी एकेडमिक, उनको बोलते हैं। लास्ट का जो 1 ईयर होता है वो होता है इंटर्नशिप, उसमें आपको पढ़ना नहीं है एमबीबीएस से रिलेटेड। हाँ, आप पीजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बात रही गई फीस की, तो मैम आपने एक बार 11,450 रुपए दे दिए। 5 साल के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना है, बस आपको मेस के लिए हर मंथली आपको पैसा पे करना पड़ेगा। आपको वहाँ की फीस पे करनी पड़ेगी अपने जेब से। एम्स खाने का पैसा नहीं देता, मेस का नहीं देता, बाकी वो 7 पैसा उसी में हो जाता है 11,500 में। राइट, ओके।
बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कैसे पढ़ें, कुछ टिप्स. ओके, सो अरुण वुड वांट टू नो अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इफ यू हैव एनी आइडिया ऑन दैट. मैम बायोटेक के लिए एक्चुअली मैम बायोटेक में क्या होता है, उसमें बायोटेक और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, और चैप्टर है वो छोटे छोटे चैप्टर हैं. तो मैम स्टूडेंट से यही कहूंगा कि उनको अगर वो बुक से डायरेक्ट रीडिंग लगा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी भी यूट्यूब चैनल से जाके वो एक बार उसको देख सकते हैं कि वो पढ़ा कैसे रहे हैं, या एग्जाम्पल याद करने में होती है तो ट्रिक बना लें, या फिर किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं. बाकी यही है मैम, वो बायो चीजें रटने वाली हैं, या रटने नहीं, उसको ध्यान से याद करना पड़ता है. एटलीस्ट हम उसको रटना नहीं कहेंगे, चीजें दिमाग लगा के पढ़ी जाती हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी मल्टीपल रिवीजन करें, तभी जाके उसमें सॉल्व आउट होता है. राइट. Okay, Dipti is asking, is MTG good for practicing previous year's questions? Is MTG any book or something that you know? Yes, ma'am. NCERT based question होते हैं. MTG बहुत अच्छी बुक है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. उसमें मैम NCERT बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो बहुत अच्छी बुक है. तो आप अगर NCERT अच्छे से फोकस करके पढ़ रहे हैं तो MTG सॉल्व करिए. अगर उसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो NCERT से रिलेटेड सॉल्यूशन दिया रहता है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. और मैम स्टूडेंट से बस यही कहेंगे कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो 10 बुक के पीछे मत भागिए. आप जो एक बुक पढ़ रहे हैं उसी को कई बार मल्टीपल टाइम पढ़ने की कोशिश करिए. अगर आप 10 बुक पढ़ेंगे तो एक बार इसको एक बार उसको, फिर आप नहीं कर पाएंगे. तो जो बुक सॉल्व कर रहे हैं उसको एटलीस्ट 2-3 बार क्वेश्चन बुक 2 से 3 बार तो आप सॉल्व कर ही लीजिए, अच्छे से मिनिमम 3 बार कर लीजिए. और अगर आप NCERT को बेस मान के पढ़ रहे हैं तो NCERT को आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा. तो चाहे आप MTG लगाइए या अदर पब्लिकेशन की बुक लगाइए, तो आप उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको. Okay. Avinash, also a lot of them were asking that for preparing NEET, can they go for like online thing, or self preparation is more than enough for NEET? Is it compulsory to take coaching centers help? मैम कंपलसरी नहीं होता कुछ भी, बट वो हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कोचिंग की जरूरत है या हम इतने कैपेबल हैं कि हम खुद से पढ़ के कर सकते हैं. ये चीज मैं डिसाइड करके किसी स्टूडेंट को नहीं बता सकता कि आप कोचिंग ज्वाइन करिए या आप सेल्फ पढ़िए. ये स्टूडेंट को खुद एनालिसिस करना होगा. वो एनालिसिस होता है टेस्ट. अगर आप टेस्ट कोई दे रहे हैं, नंबर आपका नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे गाइडेंस की जरूरत है, या मैं अपने आप में कैपेबल हूँ कि सेल्फ स्टडी करके खुद का इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ. तो ये आपको खुद जानना पड़ेगा. अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपको लग गया कि नहीं मुझे टीचर की जरूरत है जो मुझे गाइड करे, तो आप जरूर कोचिंग ज्वाइन करिए. लेकिन आपको कुछ भी करके कम टाइम में डिसीजन लेना होगा. ऐसा भी नहीं कि आप 2 साल 3 साल खुद से ही टाइम दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो ये गलत है. फिर आप अपने पैटर्न को चेंज करिए, फिर आपको चेंज की जरूरत है. Absolutely. Atharv, I think for chemistry, Atharv, Avinash has already shared, how to tackle organic chemistry reactions and everything. So once we upload this video, you can like go back and listen to whatever he has said. Okay. Physics में बहुत problems होती हैं, study करने में कुछ tips बताएं. Okay. I think physics, a lot of you are asking. Sarika also is asking like, is physics NCERT important for NEET? Avinash, if you like to answer that. मैम NCERT तो मेन है ही. फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में अगर NCERT में आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें. फिजिक्स में NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और उसकी जो एक बुक है पैरेलल में एग्जाम्पलर, उसको भी सॉल्व कर लें. और मैं स्टूडेंट से मैम एक चीज अपने तरफ से ये कहना चाहूंगा कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या जो भी बुक पढ़ रहे हैं, उसको ही एक ही बुक पढ़िए. बार बार इधर उधर अलग अलग चीजों की बुक मत देखिए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है मैम. Right. So Arun ji, also we are having a session for physics on 6th of July, that is day after tomorrow. So if you are keen to know about physics for NEET, please attend this webinar. I've already shared the registration detail. You just need to register. And we'll have another session on 13th of July, which will be like the last minute revision tips. Okay. मैम एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि लास्ट टाइम पे अगर हम करना चाहें प्रिपरेशन तो
मैम एक इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि आप 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक होता है ऑर्डर। ऑर्डर ये होता है मैम कि आप जैसे मान लीजिए वेटेज की बात करते हैं, तो आप एक बार पेपर को खोलिए, ये देखिए कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है। जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे जेनेट बायो में जेनेटिक्स हो गई मैम, इकोलॉजी हो गई, इससे बहुत रिप्रोडक्शन चैप्टर हो गया, फर्स्ट यूनिट जो हो गई, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कोशिश करिए कि जो वेटेज के बेस पे देखा जाता है, आप वेटेज के बेस को प्रिपरेशन मान के करिए। कभी कभी कुछ चैप्टर एक ऐसे होते हैं मैम कि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, बट वो एक क्वेश्चन या ना के बराबर कभी कभी नहीं आता, तो आप हो सके उनको लास्ट में वेटेज दीजिए। कोशिश करिए जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसका रिवीजन मल्टीपल टाइम करते रहिए, उस पर 100% फोकस रखिए कि अगर उससे 12 क्वेश्चन आ रहा है, एटलीस्ट 11 या 12 पूरे के पूरे सही होने चाहिए आपके। और जो टॉपिक बहुत ज्यादा बड़े हैं और जिनसे क्वेश्चन नहीं आते, आपको अगर लगता है कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, उसको पढ़ने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं और क्वेश्चन बहुत कम आता है, लगभग 2 या 3 कभी कभी पूछता है। तो आप उसको हो सकता है तो पढ़िए, लेकिन उसको लास्ट में पढ़िए, अगर टाइम मिलता है तो रिवाइज करिए। अदरवाइज जो क्वेश्चन ज्यादा वेटेज दे रहे हैं आप, जो टॉपिक ज्यादा वेटेज दे रहे हैं आप, उनको पढ़ के जाइए, इससे आपका बहुत फायदा होगा। आपने पढ़ रखा है, पढ़ना तो सभी है, जो थोड़े बहुत पढ़ रखे हैं लास्ट में हो सकता है क्वेश्चन इजी पूछ ले जिससे कम वेटेज आ रहा है, आप कर सकते हैं। ये एक फायदेमंद वाली चीज है। Absolutely. I think we will come to some other things, like we are almost towards the end of the session. So before we go to the last few questions, I am launching a poll for all of you. And this is a very important feedback poll because we want to know how was the session till now. Did you like what all we discussed? What all information Avinash has shared, his own experience of appearing for NEET and cracking and sitting for AIMS, and being a student at AIMS Rishikesh. So I think he has shared a lot of information. So how would you like to rate the session? How would you like to recommend Shiksha's webinars, and what all topics you would want us, to come up with? So we would love to have all your feedback, right? You can always share your feedback with us through mail or in the chat also. Somebody has asked about last time में preparation कैसे करना है NEET का. So we have a session on 13th of July and 6th of July, which is all last minute sessions. So you can attend that, but we'll also take some few tips from Avinash also, who has been a student for NEET. So Avinash, like last minute preparation tips, like very briefly you can share that, 1 or 2 things. मैम लास्ट मिनट में हम यही कर सकते हैं कि अगर आपने अच्छे से पूरे साल पढ़ा है तभी लास्ट मिनट आपका हेल्पफुल होएगा। अगर आपने पूरे साल अच्छे से नहीं पढ़ा है तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने लास्ट में पढ़ना है तो मैम मैं यही कहूंगा कि फॉर्मूले पे ध्यान देते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, डेली उठ के टाइम सेट करिए कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में ये चीज डेली जो जिससे हमें जुड़े रहना है वो चीज हमें डेली पढ़नी पड़ेगी। और कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप उसके एक बार हल्की निगाहों से आप उसको देखिए कि फार्मूले कैसे हैं, उसके क्या चीज मैं बार बार भूल रहा हूँ, और एग्जाम्पल बायो के डेली देखते रहिए कि ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन आप खुद क्वेश्चन फ्रेम करना सीख गए कि ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, उस दिन आप खुद समझ जाएंगे कि कितनी बारीकी से नीट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, आप खुद सॉल्व करना सीख जाएंगे। Absolutely. I think this is a very, very valuable advice that Avinash is sharing. That is something all of you who are sitting for NEET have to keep in mind. Okay. So I just, like, while you are filling up the form, all of you are filling up this feedback poll. Avinash, quickly, like a little bit about your social life at AIMS. Apart from academics, what all do you do there? मैम सोशल लाइफ की बात करें यहाँ पर तो कैंपस बहुत अच्छा है यहाँ का, और ये जस्ट गंगा रिवर के जस्ट बगल में ही है, रोड के उस साइड में गंगा रिवर है, इस साइड में कॉलेज है और पहाड़ों के बीच में है। ये आपका इन्वायरमेंटल हो गया मैम। और एकेडमिक की बात करेंगे तो मैम प्रोफेसर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं यहाँ के। अगर आपको कोई डाउट है आप उनकी केबिन में जाके पूछ सकते हैं, अगर वैसे डाउट है क्लास में खड़े होके पूछ सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। और यहाँ का जो स्टैंडर्ड है ये थोड़ा यहाँ पर ये है कि फॉरेन राइटर की बुक वगैरह चलाई जाती है। यहाँ की कैंपस, यहाँ गेम बहुत सारे हैं, इंडोर आउटडोर गेम। इंडोर में भी सारे गेम है यहाँ पर, आउटडोर में भी हैं आप। और मैम यहाँ पर
मतलब हर साल जो है फेस्ट चलते हैं, जैसे अभी इनविक्टा आने वाला है, 1 हफ्ते सीधा चलेगा। उसके बाद टूर्नामेंट वगैरह होता है, इंटरनल टूर्नामेंट, एक्सटर्नल टूर्नामेंट, अगर आप अदर कॉलेज के साथ खेलना चाहते हैं, यहाँ सारे टूर्नामेंट होते हैं। और फीस बहुत ही ज्यादा कम है यहाँ। अगर आपके पास, आपको लगता है कि मेडिकल का बहुत ज्यादा मतलब पैसा पे वाला है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही कम फीस है। जो आप पैसा फीस जमा करते हैं उसमें भी 50% वापस हो जाता है। और जो लास्ट का 1 ईयर इंटर्नशिप का है मैम, उसमें अदर मेडिकल कॉलेज जो स्टेट है वहां पर आई थिंक 1 मंथ का 12,000 रुपए देते हैं। यहाँ पर आपको 28,000 मिलता है 1 मंथ का। तो उसके कंपेयर में यहाँ पर आपको पैसा भी ज्यादा दे रहे हैं इंटर्नशिप में। राइट। Okay, Athar, what question were you asking, which is very important? Morphology and anatomy is very hard and is engaged good for PCB. I did not get your question. What do you want to ask, Athar? If you can like clarify a bit, because we have to like wrap up the session quickly. Avinash, like talking about your campus, like you shared that apart from that academics, you have good environment, a scenic beauty in your campus. So how about like the kind of faculties are there? How well do you gel with your faculties at the campus? मैम फैकल्टी तो स्टूडेंट और फैकल्टी जस्ट आस ही पास में है, सब साथ में ही रहते हैं। फैकल्टी के लिए अलग उनका रेजिडेंट है, हमारा अलग हॉस्टल है। और मैं फैकल्टी की बात करें यहाँ पर, तो फैकल्टी सारी बहुत अच्छी है मैम। यहाँ सपोर्टिव फैकल्टी हैं, और जो JRS हैं वो काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं। वो तो हमारे साथ ही रहते हैं यहाँ पर हॉस्टल में। और दूसरा ये मैम कि जैसे यहाँ पर सेकेंड ईयर से ही पोस्टिंग शुरू हो जाती है। अगर 3 घंटे की ड्यूटी लगती है स्टूडेंट की, 1-1 महीने के लिए आपका हर वार्ड शिफ्ट होता रहेगा, हर वार्ड में आपकी ड्यूटी लगेगी। Okay. So practical experience, that hands-on training is very, very good at AIIMS. Students get to have those training very well. So that is something that AIIMS does aim, that they are providing, and that is why I think most of the students, after doing NEET or MBBS, they want to get into AIIMS and move ahead. So I think that is something. Also, Avinash, like one last question. Apart from after sitting for NEET while you're pursuing your MBBS, do you advise of taking NEET, taking up PG courses and studying more and then move ahead, practical training for MBBS? What would you suggest? Like, what are your plans ahead? मैम AIIMS ऋषिकेश PG के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि यहाँ जो इंटरनल एग्जामिनेशन होता है वो MCQ आता है। अभी प्रेजेंट टाइम में MCQ चल रहा है। मैम PG के लिए प्रिपरेशन आपको बहुत सारी कोचिंग ऑनलाइन है, जैसे मैरो हो गया, प्रेप लैडर हो गया, आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। बट मैं मानता हूँ कि बुक्स वगैरह पढ़नी, अच्छी हैबिट डालनी चाहिए, डायरेक्ट आप कोचिंग ना ही करें। और लास्ट का जो इंटर्नशिप होता है मैम, उसमें टाइम मिलता है आपको PG की प्रिपरेशन के लिए। तो 1 साल बहुत होता है मैम। अगर आपने 4 साल अच्छे से पढ़ा है, तो लास्ट के 1 ईयर आप अच्छे से पढ़ के और PG निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ से भी जस्ट एक सीनियर शिक्षा वालों ने उनका इंटरव्यू लिया था, जस्ट एक सीनियर गए हैं, उनकी ऑल इंडिया रैंक 166 है। और भी सीनियर बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन अच्छी जगह हुआ है। That's really nice, and I think that is more important. And I would suggest all of you, like whatever Avinash has shared, all his experiences, hands-on training, the study topics, he has suggested so many topics. Please go through them and watch this entire video. This video will be there on YouTube, so you can always go back and understand whatever he has shared, because someone who has gone through that and someone who has shared his experience will always helpful be, right? So just listen to whatever he has said, make note of that, because not much time is left for your exam. So you have to study hard, you have to concentrate, remove away from any kind of distractions, and just focus on your exams, because not much time is left for NEET. So that is what we are doing these sessions to get you engaged in these kind of discussions. And Avinash, thank you so very much. I think you have shared so important, valuable things of your experience that will really help all the students who are going to sit for NEET. And I think they will really imply those things in their practical things, their study routine. And I think I've already shared all the links. So we have 2 more sessions for NEET.
and we will be uploading all videos for NEET, everything on YouTube. So just go back on our channel and watch those videos. That will be really, really helpful to all of you. If you want, I am also sharing Shiksha's page with all of you, so you can actually go back and listen to those videos, make note from them, and whatever notes I could get hold of, I will definitely share it with all of you, right? So I'm just dropping in the YouTube link. All the videos are there, okay? These webinars are there on YouTube, so don't worry. You can always go back and listen to all those videos. And if you want to connect with any of the students, you can reach out to us, okay? They all are available on LinkedIn and all social media handles. So you can always reach out to us, and we will want Avinash to write some review answers for our website also for regarding to your queries. Vaishali, I am just dropping my email ID, okay? You can connect with me on the email if you have anything to ask. We'll also have Avinash answer some of the queries regarding to this particular session. So you can reach out to me here, right? So thank you all of you. I wish all the very best to all of you. Please join us for 2 more sessions that we have on 6th and 13th. I've already dropped the link. Please follow us on LinkedIn. I will be sharing all the relevant posts over there for all the upcoming webinars, right? Avinash, thank you so much once again. Thank you, ma'am. I think the students loved whatever you said. They loved hearing you, and whatever tips you have shared. They just really admired that, because I could see they have given so many feedbacks over here. So thank you all of you, and all the very best. And we would love to have Avinash back again on our webinar panel soon. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel.